Fine. So let's start the session. So today's session is all about understanding the mathematical reasoning kind of LRDI sets. Okay. So I got certain queries related to this, that how to tackle these kind of sets. जो भी जिसमें mathematical reasoning भी involved होती है, ठीक है. So for that, obviously it's very difficult to come up with some kind of formula or concept. Rather, I can say that you can understand it by solving certain number of sets and giving some importance to your own observation and taking out certain things which you find that more or less this is the optimum approach we follow to crack these kind of questions. Okay. So if I tell you that what is my experience with puzzles and something related to mathematical reasoning, then it is certainly something which is given in puzzle means exclusively for that particular set. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक information दिया हुआ है that A is not having red ball. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का एक ही मतलब है कि भाई एक बंदा ए है, उसके पास रेड बॉल नहीं है. ठीक है, तो रेड बॉल डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन ये होगा किसी और के पास होगा. ठीक है, vis-a-vis if I take another condition, say A is having 24 balls more than B. ये भी similar sort of information है, if you can see, but here since the number is involved, then this number is carrying lot of information in itself. ठीक है, and that we have to focus more. So in a mathematical reasoning, you should look, mathematical reasoning is something like puzzle. Apart from puzzle, the extra thing which you should be focusing is that whatever the numbers are given, you should focus on their properties. ठीक है, तो अगर मैं एक मैक्रो, अभी आ रही है आवाज? I think the voice is clear, right? ठीक है, थोड़ा अपने एंड पे चेक कर लो विशाल. Okay. So I was talking about the properties of numbers. So these properties will give you a lot of clues. ठीक है, तो mathematical reasoning अगर solve करना है तो you have to find the clues apart from the usual clues which is given on the puzzle. You have to focus more on the numbers. For example, suppose this is a 24, right? So it's an even number, right? And suppose from some other clues we found that B is carrying some odd number of red balls. So automatically with this clue I can say that A will also carry some odd number of red balls, yeah, odd number of balls, right? Because A is carrying 24 which is an even plus some odd, so obviously A का भी कितना होगा odd. अब ये information clue में नहीं दिया होगा, we are deriving it by using certain properties of the numbers given. ठीक है, apart from that बहुत सारी चीजें हो सकती है. For example, 24 is a multiple of 4. ठीक है, it's a multiple of 6. It has certain number of factors. There are many things which I can take help of depending upon whether it is useful to solve that particular set or not. ठीक है, बट उस तरफ दिमाग जरूर दौड़ना चाहिए आपका. ठीक है, तो अगर मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको बता रहा हूं तो इसमें एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होगा. ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगा जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो नंबर्स होंगे उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है वो भी इनहेरेंटली वो कैरी करेंगे एंड दैट माइट बी यूज्ड, इनफैक्ट क्वाइट ऑफन इट इज यूज्ड टू क्रैक दिस सेट. ठीक है, सो फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग ऑलवेज फोकस मोर ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स. ठीक है, मैं बहुत हाई फंडू प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक the even number, the odd number, certain kind of prime number. ठीक है, फिर certain factors कौन किसका हो सकता है, multiples की अगर हम बात करेंगे इस टाइप की चीजें हो सकती है. For example, if I'm adding say 3 odd numbers, then it should be quite clear that the summation will also be an odd number, right? And if I adding an even and odd and even and odd something like that, then you should be able to identify that कि कितने उसमें even होगा कि odd होगा या क्या चीज होगा. ठीक है, so this is the first thing. Second thing is that try to use the boundary condition, I would say. ठीक है, boundary condition को use करना है to make
दी केसेस। ठीक है, इसको थोड़ा एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब होता है बाउंड्री कंडीशन का। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान दो। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको बस कुछ टिप्स दे रहा हूं मैं। जो भी लोग मुझसे पूछा था कि ठीक है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए हम और क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम यूजुअल थिंग्स ऑफ सॉल्विंग देम एंड गेटिंग टू नो दैट एट द एंड की कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए कुछ जो टूल्स हैं वो यूज करना है। तो आपको जब भी केसेस बनाने के, बिकॉज मोस्टली यू विल फाइंड दी सेट्स in which you have to figure out the cases, right? So while making the cases, you should be looking for the boundary condition. What do I mean by the boundary condition? For example, suppose if we are given numbers say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So suppose these are the 10 numbers we have been given, and in a set we have to identify 3 numbers x, y and z out of these 10 numbers so that their sum is equal to say 15 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये 15 तो बहुत तरीके से बन सकता है ना। देयर कुड बी मेनी पॉसिबिलिटीज, मेनी केसेस। बाय टेकिंग 3 वैल्यूज आउट ऑफ दिस we can make 15. So what you have to do is that you have to ensure that you are taking all the cases, and for that you should be starting from the boundary condition. Always look for the largest or the smallest possible. ठीक है, इस पे आप बस फोकस करो। जब भी आपको सम निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, मल्टीपल निकालना हो, तो सबसे एक्सट्रीम चीजों के बारे में सोचो कि सबसे मैक्सिमम क्या हो सकता है और सबसे लीस्ट क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू पिक 3 नंबर्स whose sum is 15, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। आई नो कि ये 15 नहीं होगा, लेकिन मैं स्टार्ट जरूर करके देखूंगा कि 8, 9, 10 इनको लेता हूं तो डेफिनेटली इट इज मोर देन 15, राइट? एंड देन आई कैन से दैट लेट अस drop 8 with 9 and 10. Can I make 15? No, again because 9 and 10 itself is 19, which is more than 15. So मुझे ये समझ में आएगा कि मैं इन दोनों को साथ में यूज नहीं कर सकता। So again I'll drop this and now I'll look for taking only 10 how I can make 15. ठीक है, तो 7 डेफिनेटली नहीं होगा, 6 डेफिनेटली नहीं होगा, 5 डेफिनेटली नहीं होगा। I'll be getting this 2, 10, 4 and 1. And the next I'll be getting is what? 10, 2 and 3. So these are the two possibilities if I am taking 10. नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, 10 को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दूंगा। अगेन आई विल बी डूइंग लाइक दिस। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, इन दोनों को यूज करूंगा, ये भी बड़ा हो गया। अब ये 9 को लूंगा मैं। ठीक है, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आई हैव आइडेंटिफाइड, ठीक है, कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं वहां पे आपको एक जो टेक्निक शेयर कर रहा हूँ उस पर बस आप ध्यान दो। देखो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग वाले सेट्स होंगे, अनलेस ये बहुत ईजी हो या फिर आपने तुक्के पे वो केस पकड़ लिया जो उस पर फिट बैठ रहा है, तो जल्दी बन जाएगा। अदरवाइज इट विल डिमांड सर्टेन टाइम। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस भी आपको रखना चाहिए। नंबर ऑफ केसेस से आपको डरना नहीं है। ठीक है, हाँ नंबर ऑफ केसेस आइडियली शुड नॉट बी मोर देन 2। मतलब अगर मैं एक थंब रूल आपको बताऊं तो 2 से ज्यादा केसेस नॉर्मली नहीं होने चाहिए। 2 या 3 भी हो गया तो चल गया। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे केसेस बना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं सॉल्व कर रहे हैं। मतलब फिर दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि फिर मैं शायद ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जिस क्लू को यूज करके चालू किया था उस सेट्स को स्टार्ट करने के लिए, आई शुड ड्रॉप दैट क्लू, आई शुड लुक फॉर सर्टेन अदर क्लू। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो टिप्स दे रहा हूं उसको बस आप चाहो तो नोट भी करते जाओ, थोड़ा ध्यान रखते जाओ। खासकर उन लोगों को ज्यादा समझ में आएगा जिन्होंने कुछ सेट्स बनाए हैं। सो दे विल, वो उनको थोड़ा सा मैच होता हुआ दिखेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आती है, ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड देन आई विल स्टार्ट विद 9 सपोज। तो 9 के साथ फिर मैं ये देखूंगा, तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। डेफिनेटली मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया था, इस केस में बहुत सारे केसेस बनेंगे, बट मेरा पूरा मेजर ऑब्जेक्टिव जो था इस चीज को समझाने के लिए वो ये है that you should always look for a boundary conditions, should look for a extreme cases, और किसी ना किसी एक एक्सट्रीम केसेस से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहां से ही क्यों किया, ठीक है, मैं यहां से करता तो 3 कितना हो रहा है 6, ये बहुत छोटा है। 15 से यहाँ किया तो बहुत बड़ा है, तो मुझे मालूम है कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे, बट आई जस्ट वांट टू एंश्योर दैट मेरे पास इनमें से जो भी केसेस बन रहे हैं उनमें से कोई केस छूट ना जाए, क्योंकि एक भी कोई केस छूटा तो क्वाइट पॉसिबल दैट वी माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व द कंप्लीट सेट, या हो सकता है कि हम उसको कुछ भी तरीके से सॉल्व ना कर पाए, कोई ना कोई कंडीशन मिसमैच हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये बात समझ में आ रही है आपको। छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज है नंबर्स का, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड व्हाइल मेकिंग केसेस ऑलवेज लुक फॉर द एक्सट्रीम थिंग। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करो और बहुत मेथोडिकली बनाओ, बिकॉज आप ये मत सोचो कि इतने सारे केसेस मैं हिट एंड ट्रायल में क्यों ना बनाऊं। एक दिमाग में आता है कि चलो हिट एंड ट्रायल करके क्यों ना बनाऊं, उसमें जैसे मैंने आपको बताया आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो हो सकता है कि वो केस हिट एंड ट्रायल में आपको शायद जल्दी मिल जाए, बट चांसेस भी है ना उसके प्रोबेबिलिटी भी आप निकालेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी लो रहती है। तो आपको थोड़ा मेथोडिकली होना पड़ेगा, अदरवाइज आप
पहले ये डिसाइड करो, एग्जाम की अगर बात करो कि मुझे ये सेट बनाना है कि नहीं बनाना है, तो थोड़ा बहुत वो पेशेंस और वो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम डेफिनेटली आपको देना चाहिए। उसके बाद अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है, एनीवे मतलब इट्स अ रिस्क जो हम लोग कैरी डेफिनेटली करते हैं सेट्स बनाने के लिए। ठीक, तो ये दो चीजें हैं जो मुझे लग रहा है अपार्ट फ्रॉम जो पजल की चीजें रहती है उसके अलावा आपको नेसेसरी रहेगी फॉर एनी मैथमेटिकल रीजन। इसमें बार बार मैं एम्फेसाइज नंबर्स जो दिए होते हैं ना उन पे बहुत करता हूं मैं, ठीक है। उन पे भी अगर मैं अपना शेयर कर रहा हूं, जो एक आइडिया है वो ये है कि जो लार्जेस्ट नंबर होते हैं या अमंग द लार्जेस्ट नंबर होते हैं उनको फोकस करो, एंड अमंग द स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं उनको फोकस करो, ठीक है। वहां से काफी सारी चीजें जो केसेस बनेंगे, बहुत मल्टीपल केसेस जो पॉसिबिलिटीज है उनको बहुत हद तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं उसको, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो 2 डाइस लेते हैं, ठीक है, उसको अगर हम रोल करते हैं, देन वी नो दैट द मिनिमम सम व्हिच वी कैन गेट इज व्हाट 2 एंड द मैक्सिमम सम व्हिच वी कैन गेट इज व्हाट 36, राइट। इनके बीच में बाकी सारे सम्स भी आएंगे। देन यू विल फाइंड that in the extreme cases, in the extreme sum, the number of cases will be less, ठीक है, because दो सम क्या बनेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है ना 1 1, 36 में क्या बनेगा 6 6। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सम 10 लेना है तो डेफिनेटली इसके नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बनेंगे। अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर सॉरी 3 केसेस कर लीजिए, ठीक है, सॉरी 12 है ना। सो नाउ यू आर गेटिंग इट दैट इफ आई मेक अ ग्राफ लाइक दिस, तो इस केसेस में कुछ ऐसा बनेगा। ये जो एक्सट्रीम केसेस, एक्सट्रीम सिनेरियो होंगे, बाउंड्री कंडीशंस होंगे, उसमें नंबर ऑफ केसेस छोटे बनेंगे और बीच वाले में नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली ज्यादा बनेंगे। तो आपको बीच में रैंडमली नहीं उठाना है, आप यहां से स्टार्ट करो और जहां पर भी एक्चुअल में केस होना चाहिए इन्हीं का ही मैनिपुलेशन करके आप वहां पे पहुंच जाओ। अभी जो केस, अभी जो सेट लेंगे हम लोग उसमें इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है गाइस। फिर कुछ और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं एक बार यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं। उसको थोड़ा जब सेट सॉल्व करेंगे तो एक बार रिवीजन में भी उस चीज को मैं देख लेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप मिस कर दोगे तो हर बार, क्योंकि कोई एक फॉर्मूला नहीं है सॉल्व करने का, है ना, तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट लुक फॉर दी क्वेश्चंस ऑप्शंस। जो भी सेट पढ़ रहे हो ना उसके क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी देखो। कई बार क्वेश्चंस भी क्लू दे देता है, लेकिन अगर इंटेलिजेंटली क्वेश्चन डिजाइन है तो हो सकता है वहां से क्लू जल्दी ना निकल पाए, लेकिन किसी किसी केस में हो सकता है कि क्वेश्चंस के ऑप्शन से क्लू मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने केसेस बनाए, एक क्वेश्चन है उसमें से 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई नंबर आ नहीं रहा है जो नंबर 5 है मान लो, ठीक है, और वो ऑप्शन में नहीं दिया है, और नंबर 5 को लेकर आपने कुछ केसेस बनाए थे 2 और 3, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर 5 क्योंकि अपियर ही नहीं हो रहा है, तो नंबर 5 को लेके जो केसेस बन रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए उसको हम एनीवे डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखना चाहिए, बट ये हर बार यूजफुल रहेगा जरूरी नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव टू राइट इन, नॉट नेसेसरली फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग बट फॉर ऑल, बट मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड राइट all the conditions and transform it into mathematical form। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सेंटेंस मत लिखो, उसको मैथमेटिकली कुछ ना कुछ तरीके से आप उसको लिखो ताकि वो जल्दी से जल्दी आप उसको प्रोसेस कर पाओ, ठीक है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये थर्ड वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मुझे जो लग रहा है कि 90% केसेस में ये फिट होता है, और वो ये है कि जब हमको नंबर फिट करने होते हैं, ठीक है, तो जब हमको फिट करने होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमको दिमाग में रखनी चाहिए कि हम स्टार्ट कहां से करें, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने के लिए जो मुझे लगता है वो ये है कि आप उस क्लू से स्टार्ट करो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स को फिट कर देता, ठीक है। मतलब हो सकता है कि एक साथ दो, अगर वो क्लू आप क्रैक करते हो तो सिर्फ आपको एक नंबर नहीं मिलेगा, आपको 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे नंबर मिल जाएंगे, उसको आप डायरेक्टली फिट कर सकते हो। आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। कि काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि सर मैं कौन से क्लू से स्टार्ट करूं, तो आप क्लू पढ़ के डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि हर बार क्लू नंबर 3 पे ही रहेगा, तो आप उस क्लू को अटैक करो जिसमें अगर वो क्लू क्रैक हो जाता है तो आप ज्यादा नंबर्स फिट कर सकते हो, ठीक है। यू शुड बी टारगेटिंग दोज क्लूज
which will ensure that if you crack them, then you can put more number of numbers. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कोई हैंड रेज करा भाई, ये चैट में आप पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है, ठीक है। सो थर्ड वाला काफी इंपॉर्टेंट, और ये चीज से ही आप स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। फोर्थ है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग केसेस। ठीक है, आप ये मत सोचो कि सर बाप रे इतने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे क्या, आप उससे डरो मत, पहली बात तो। ठीक है, बिकॉज क्या होगा, आपको वो सारा केसेस पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप केसेस से स्टार्ट जरूर करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर वो केस सही नहीं है, ठीक है, इफ दैट केस इज नॉट द करेक्ट केस, देन डेफिनेटली सम और द अदर क्लू विल डेफिनेटली कम, विल कॉन्ट्राडिक्ट इट, एंड यू विल जस्ट ड्रॉप दैट पर्टिकुलर केस एंड मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मल्टीपल केसेस। ठीक है, एंड डेफिनेटली यू हैव टू टेस्ट दीज केसेस विद द क्लूज। ठीक है गाइस, ये चार मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये एक अप्रोच भी बोल सकते हो, स्टार्ट करने का इनिशियल तरीका भी बोल सकते हैं। मिक्स मैच है, मिक्स बैग है काफी सारे चीजों का, मेथड खासकर मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने का। एंड डेफिनेटली यू हैव टू बी बिट कंफर्टेबल विद मैथमेटिकल रीजनिंग आल्सो। तो मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, अभी भी मैं सजेस्ट करता हूँ जो लोग नए हैं या फिर बाद में ज्वाइन किया है, कि आप सुडोकू डेफिनेटली सॉल्व करो। ठीक है, स्टार्टिंग अगर आप अभी तक आपने सुडोकू कभी भी लाइफ में सॉल्व नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करो। वो आपको सुडोकू सॉल्व करना, कम से कम नंबर को फिट करने वाला जो एक होता है ना, मतलब जिसको कहना चाहिए कि एक आदत होती है, ठीक है, वो आप डेफिनेटली डेवलप करेगा, जिसको बोलते हैं ना हैबिट ऑफ फिटिंग द नंबर्स। ठीक है, दैट विल डेवलप, the Sudoku has that particular quality. ठीक है, you can start with easy to, and you can just move to the moderate. No need to go for a very tough one, because Sudoku itself will not improve, will not be sufficient for the mathematical reasoning thing, but yes, definitely it will make you comfortable in that. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग केस को एक बार डिस्कस करेंगे, और मैं ज्यादा कोशिश ये करूंगा कि उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस केस को अच्छे से पढ़ो, और जो भी आपको लग रहा है ना कि सर ये प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइप के केस में, या यहाँ पर हम कैसे सोचेंगे, या जो भी है, वो डेफिनेटली आप मुझसे पूछो। तो कोशिश मैं करूंगा कि जो भी मुझे लग रहा है कि ठीक है, एक अगर कोई थंब रूल बन सकता है, या फिर ऐसी कोई चीज है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, जो काफी सारे ऐसे सेट्स में यूजफुल हो सकते हैं। कुछ हो सकता है जो इसी सेट में होगा, लेकिन काफी ऐसी चीजें होंगी जो अप्रोच होगा, मेथड होगा, कुछ तो कुछ ऐसी चीज होगी जो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। तो आई वुड टेल यू हियर। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले नाउ लेट अस स्टार्ट विद द केस। तो ये केस है, ये ऑलरेडी मैंने इसमें भी पुट अप किया हुआ, बट आई थॉट दैट कि दिस केस इज अ गुड एग्जांपल टू टीच यू अबाउट मैथमेटिकल रीजनिंग, एंड दैट्स द रीजन आई हैव टेकन। ठीक है, सो आई विल बी म्यूट फॉर अ मिनट। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप भी पेपर पेन लेके बैठो। ठीक है, अब बस जो भी चीजें दी है इसमें, एक ये और इंफॉर्मेशन है, उसको भी मैं यहाँ पे पुट अप कर दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। Guys, is it visible now? ये अभी जो मैं बॉक्स बनाया है, ये टेबल विजिबल है अभी? ओके फाइन, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू इट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से ना इसको पहला काम करो। सबसे पहला काम ये है, क्वेश्चन तो भूल जाओ, पहला काम ये करो कि ये जो भी कंडीशन है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इट वुड बी बेटर, इफ नॉट देन एटलीस्ट मेंटली ट्राई टू फिगर आउट दैट कैन यू इंटरप्रेट इट मैथमेटिकली। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो इसको मैथमेटिकली लिख दो बस कहीं पे, कैन यू डू दैट? बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट सेकंड, बट सॉल्व करने के लिए वो फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सो आई विल बी म्यूट फॉर अ मिनट, जस्ट गो थ्रू इट, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, आपको बस कंडीशन पढ़ना है। पहली चीज फोकस करना है, कैन यू कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली और नॉट। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के उस पे जाते हैं। तो पहले तो एक बार आप गो थ्रू करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू फिट द नंबर फ्रॉम 1 to 16। एक सेकंड में इसको यहाँ रख लेता हूँ, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक है,
So we have to fit the number 1 to 16 in this 4x4. ठीक है, उसमें भी देखो 1 2 3 4 5 5 तो चले गए, इसका मतलब मुझे 11 नंबर है जो इसमें फिट करना है. ठीक है, and these are the 7 conditions, right? So let us एक मिनट. So let us start with the first condition. What it says that पहला काम अपना होगा कि फिट करने की कोशिश मत करो, बस पहला ये करो कि जो भी क्लू दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट करो. नो इवन नंबर इनटू प्लेस इन द फर्स्ट और फोर्थ रो. ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ रो में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली ऑड नंबर होगा, राइट? ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ऑड है, ये ऑड है. दैट इज व्हाट आई मीन टू से कि ठीक है यहाँ पे ऑड जाएगा, राइट? यहां से एक इंटरप्रिटेशन ये भी आ रहा है ना कि सेकेंड एंड थर्ड रो विल ओनली कंटेन इवन नंबर. कैन वी इंटरप्रेट दिस? yes or no? The reason is very simple. The first row and the fourth row, the total number of numbers will be what? 8. ठीक है, the numbers which we can use is 1 to 16. So there are 8 even numbers and 8 odd numbers, right? So all the odd numbers will be occupying the first and the fourth row. So definitely the rest of the rows, that is second and third, will be occupied by even number. ठीक है ना? इस तरीके से थोड़ा सा एक इंटरप्रिटेशन करते जा रहे हैं. जहां पे बेसिक इंटरप्रिटेशन हो रहा है और कोई केसेस नहीं बन रहे वहां तो डेफिनेटली हम यहाँ लिख सकते हैं. तो कहना है जो पहला काम है ये हो गया मेरा. ठीक. सेकंड, नो मल्टीपल ऑफ 5 इज टू बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट और फोर्थ कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम में कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो पहला काम तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं नंबर्स को लिख लेता हूँ इस तरीके से. ठीक है, काफी हेल्पफुल रहता है बिकॉज जो नंबर फिट हो जाएगा मैं उसको हटा दूंगा. तो क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑलरेडी हैं उनको मैं यूज ही नहीं करता हूँ. चलो ठीक है, देखो 1 तो यूज नहीं हुआ है, 2 यूज नहीं हुआ है, 3 ऑलरेडी यूज हो गया है, 4 यूज नहीं हुआ है, 5 यूज नहीं हुआ है, 6 ऑलरेडी हो गया है, 7 हो गया है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 हमको यूज करना है, 12 ऑलरेडी हो चुका है, 13 है, 15 है और उसके बाद 16. ठीक है, ये नंबर हमको फिट करने हैं, राइट? नाउ नो मल्टीपल ऑफ 5 इज टू बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट और द फोर्थ कॉलम. तो फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 नहीं जाएगा. इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं सो दैट दिस विल रिमाइंड मी दैट एक्सीडेंटली भी मैं इन कॉलम में 5 10 एंड 15 में कुछ भी पुट नहीं करूंगा. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट यू हैव टू मैथमेटिकली इंटरप्रेट इट. ठीक है, उसको वहां पे लिख दो उस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है गाइस? आप मुझे बताते जाओ. ठीक है, जहां पर भी आपको लगता है ना कि कोई इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ है, तो वहीं भी आप पूछो बिकॉज जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी ना वहां को एड्रेस करूंगा तब आपकी लर्निंग होगी. क्या से अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को? Guys, am I absolutely clear till now? Okay, fine. Now let's take the third. The sum of the integer in one of the diagonal is 18. Hers, you can just ask me on the chat, है ना? The sum of the integer in one of the diagonal is 18. Now how many diagonals it has? ये एक diagonal है और ये एक diagonal है. In each of the diagonal there are 4 numbers which will be placed. ठीक है, दोनों डायगोनल में एक एक नंबर दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं. ठीक है, कि द सम इज 18. हियर आल्सो द सम इज 18, राइट? ठीक है, इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है. अभी मैं कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं जो इंफॉर्मेशन है उसको वहां पे पुट कर दे रहा हूं. जो बहुत ऑब्वियस है उनको मैं लिख दिया था. ठीक है, यहाँ पे अब मैं नंबर नहीं फिट करने जाऊंगा कौन सा 18 होगा बिकॉज अभी हम पूरा उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं. Next, no square or cube of an integer is to be placed in the third column. So third column में कोई भी square और cube नहीं आएगा. ठीक है, तो क्या क्या नहीं आएगा? 1 नहीं आएगा, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 नहीं आएगा. ठीक है, स्क्वायर हो गया और क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 2 का क्यूब इज 8 नहीं होगा, 3 का क्यूब इज 27 तो बाहर हो गया. इसका मतलब जो होने चाहिए पॉसिबिलिटी वो मैंने लिख दिया यहाँ पे.
ठीक है, तो थर्ड वाला भी हो गया इंटरप्रिटेशन, सॉरी ये फोर्थ वाला था, है ना। फिफ्थ वाला इज दैट द सम ऑफ द इंटीजर in the column which contains 10 should not be less than the sum of the integer in the column containing 1. तो यहां से एक ही चीज समझ में आ रहा है कि 1 और 10 दोनों सेम कॉलम में नहीं रहेंगे, पहली बात, ठीक है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ही absurd हो जाएगा, ठीक। दूसरा ये है कि जिस कॉलम में 10 है उस कॉलम का सम should always be greater or equal to the column which contains number 1, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं कुछ ऐसा लिख दे रहा हूं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। दैट the sum which contains 10, the column which contains 10, उसका sum should be greater than or equal to the sum of the column which contains number 1, ठीक है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, you are free to do that, ambiguity नहीं रहनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट, no more than 1 square of an integer is to be placed in any diagonal. जो diagonal है उनमें एक से ज्यादा कोई भी स्क्वायर नहीं पुट करना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ ताकि इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट कर पाऊं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो भी सम है दैट शुड कंटेन लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैन आई से ये वाला पोर्शन, ये वाला जो इंफॉर्मेशन दिया हूं, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, इज दिस पार्ट क्लियर गाइस? बात तो वही हुई ना, मैथमेटिकली ये इंटरप्रिटेशन हुआ कि नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, 1 या 1 से कम होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर इन दैट पर्टिकुलर डायगोनल, और डायगोनल के पास ही लिखा हूं ताकि ये रेफरेंस जो रहेगा वो डायगोनल का ही रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज द सम ऑफ द इंटीजर इन द फर्स्ट रो इज इक्वल टू 30, सो हियर द सम इज इक्वल टू 30, राइट। सारे इंफॉर्मेशन मैंने ला लिया। अब मेरे ख्याल से आई डोंट हैव टू गो बैक टू दी कंडीशन जो लिखा हुआ है, वो तो हर चीज में करना है जो मैंने पहले भी बताया, और अगर आपने मेरे सॉल्यूशन देखे हैं, पहला काम तो ये होता है कि आपको फिर से स्क्रीन पे देखने की जरूरत ना पड़े, ये काम तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए, जो भी है उसके इर्द गिर्द आसपास जहां पर फिजिबल जगह है वहां पर जरूर लिख लेना चाहिए, ठीक है। और मुझे जो नंबर फिट करने हैं वो है 1, फिर 2, 4, 5, 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 है, 9 है, 10, 11, 13, 15 एंड 16, ये नंबर्स को मुझे फिट करना है बाकी पे। अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले लग रहा होगा कि ये कोई छोटी सी बात है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप है। अगर आपको वो स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचो, स्क्रीन पे कोई चीज रहनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए कंडीशन, तो उसको किसी ना किसी तरीके से अनएम्बिगुअस तरीका होना चाहिए, वो पेपर पे जरूर आना चाहिए, तभी तो उनको प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने तरीके से लिखो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब अपन आगे जाते हैं। अब सबसे पहला काम जो आता है वो होता है कि हम स्टार्ट कहां से करें, कौन से कंडीशन से हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि ये एफर्ट अपना हमारे काम का ही एफर्ट रहेगा, मैं क्या करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिया था, जैसे फर्स्ट रो, तो इनको मैं एक ऐसा नंबर दे दे रहा हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन था ये फर्स्ट वाले का था, ठीक है। सेकंड वाले का ये इंफॉर्मेशन था, ठीक है। थर्ड वाले का मेरे ख्याल से ये 18 वाला था इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फोर्थ वाला है ये क्यूब वाला था, राइट, ये फोर्थ वाला इंफॉर्मेशन क्लू से लेके आए थे। और फिफ्थ वाले से हमने लेके आया था ये 10 वाला था ना, हाँ 10 शुड नॉट बी दिस, ये फिफ्थ वाला इंफॉर्मेशन है। फिर सिक्स्थ वाले से हमारे पास कौन सा आया था, स्क्वायर नॉट टू बी प्लेस्ड इन एनी डायगोनल, हाँ ये सिक्स्थ वाला इंफॉर्मेशन है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन, है ना, और हम जब बात करें तो उसको रेफरेंस ले सकें, ठीक है। और सेवंथ वाला इंफॉर्मेशन ये है, दिस इज सेवंथ वाला इंफॉर्मेशन, ठीक है। सारे इंफॉर्मेशन आ गए। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा क्लू से हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये अगर हमने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि हम उसको क्रैक कर सकते हैं। चलो इस पर डिस्कस करते हैं, कौन से क्लू को यूज करना चाहिए। फोर्थ वाले को यूज करना चाहिए, और एक आ रहा है सेवंथ वाले को करना चाहिए, ठीक है। क्लू नंबर 7, हाँ एक डायगोनल वाला भी दिया ना, 18 वाला,
ठीक है, क्लू नंबर 2 जो है 5, 10 और 15 नहीं आएगा वाला। ये नॉट वाले जो इंफॉर्मेशन होते हैं ना, ये अगर बहुत ज्यादा ना रहे तो फिर उसका काम नहीं है। देखो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई 5, 10 और 15 नहीं आ सकता, बट कौन सा आएगा उससे मैं यहाँ पे फिट कैसे करूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली जो थोड़े से बिगनर्स होते हैं वो क्या गलतियां करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कोई एक सेल फिल हो जाए, एक सेल से स्टार्ट करूं फिर मैं दूसरे सेल को फिल करूं, ऐसा करते जाऊंगा और उसके बाद में फिल करता हूं। हो सकता है ऐसे भी आ जाएगा आंसर, बट वो बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है। और हो सकता है कि बीच में अगर जो आपने सेल फिल किया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से स्टार्ट किया कि भाई यहाँ पे 11 होगा, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये 11 को लेके आप फिल करते जाओगे, फिर बाद में पता चला कि जब इसको आप फिल कर रहे हो, इसको फिल कर दिया और इसको फिल करने लगे, तब कंडीशन आपकी वैलिड हो रही। फिर आप चेंज करोगे पूरा, फिर आप आओगे, फिर कुछ और लोगे, तो ये तो पूरा हिट एंड ट्रायल ही तरीका होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेटली बिग नो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस पर्पज से भी। आप प्रैक्टिस करते समय भी ये चीज मत करो, बिकॉज प्रैक्टिस भी करो तो ऑप्टिमाइज तरीका सीखने की कोशिश करो उसमें। ठीक है, ये डेफिनेटली बिग नो है, इसलिए मैं आपको सुडोकू वाला बोला। जब आप सुडोकू सॉल्व करोगे तो ये आइडेंटिफाई कि उसमें एक एक फिट करते हैं, बट जो थोड़े अच्छे तरीके से सुडोकू सॉल्व करते हैं वो एक से ज्यादा नंबर को फिट करते हैं। ठीक है, तो वो वहां से आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा, राइट। तो मैंने आपको जो बताया था, टिप्स बताया था, उसमें क्या बताया था कि हमको कोई एक दो नंबर से वो नहीं करना है, हमको ज्यादा नंबर कहाँ फिट हो सकते हैं उसमें। ठीक है, बिकॉज देखो इस टाइप का जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग है उसका अगर मैं एक जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मान लो कि मैं एक बताऊं कि ये आपका एफर्ट है और ये आपका सॉल्यूशन की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनिशियल एफर्ट आपका सबसे ज्यादा होना चाहिए। वो अगर आपने क्रैक कर लिया तो बाद में वो फिर स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए और लास्ट में फिर आप पहुंच ही जाओगे। एक एक करके फिट करोगे तो आपका एफर्ट फिर कुछ ऐसा रहेगा, पहले थोड़ा एफर्ट फिर थोड़ा एफर्ट, फिर वो एफर्ट हमेशा बढ़ता चला जाएगा और बार बार रिट्रेस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसलिए जो सबसे मुश्किल काम है उसको कोशिश करो कि पहले निपटा दो। तो उसके दो फायदे, अगर हो गया तो जो केस है वो क्रैक हो जाएगा, नहीं हुआ तो कम से कम ये समझ में आ जाएगा ना एग्जाम में इसको छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, तो क्लू क्या बताया था, जहां ज्यादा नंबर फिट हो सकते हैं। ठीक है, देखो 7th वाले में अगर हम ये क्रैक कर लें कि कौन से वो 4 नंबर है जिसमें से कि ऑलरेडी गिवन है, कौन से वो 3 नंबर यहाँ पे आएंगे जिनका सम 30 होगा। ठीक है, तो बहुत सारे अपने काम हो सकते हैं, या फिर हम डायगोनल में फिट कर दें। ठीक, तो मैं क्लू नंबर 7 और क्लू नंबर 3 इन दोनों को इंपॉर्टेंस दूंगा। डू यू एग्री विथ मी? अगर इन दोनों में से कोई एक क्लू को हम क्रैक कर लेते हैं तो हम 3 नंबर फिट कर जाएंगे, यस और नो? राइट, अब ये दोनों में से किसको करें? तो दोनों में से हमें 30 वाला ही करना चाहिए। उसका रीजन है बिकॉज डायगोनल में तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, या तो ये वाला या तो ये वाला, राइट। तो अगर मैं ये दोनों को वे करूं तो मुझे समझ में आता कि नहीं यार इससे करना चाहिए, बिकॉज ये क्रैक हुआ तो इसी रो में ही 3 नंबर फिट होगा, राइट गाइस। ठीक है, एंड मोर इंफॉर्मेशन आर गिवन फॉर दी कॉलम्स, तो वो इनको भी इंपैक्ट करेगा इन 3 नंबर्स को। तो सिर्फ ये स्टैंड अलोन मैं यूज नहीं कर रहा हूं, इनके साथ साथ में इनको भी यूज करता जाऊंगा, तो ज्यादा चांसेस है कि मैं इस रो के 3 नंबर निकाल सकूं। हाँ एफर्ट बड़ा है लेकिन निकाल सकूं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद मैं ये डिसीजन डेफिनेटली लूंगा कि अगर मैं इन तीनों को फिट कर गया तो डेफिनेटली मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं कर पाया तो मैं केस को 4 मिनट 5 मिनट जो भी बात उसके बाद में छोड़ दूंगा। मैं एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप ये डिसीजन तो डेफिनेटली ले पाओगे। ठीक है, 3-4 मिनट 2-3 मिनट ये सब लिखने के लिए और 2-3 मिनट वो करने के, तो 5-7 मिनट डेफिनेटली हो सकता है कि अगर आप बहुत सिनेरियो में आपका वेस्ट जा सकता है, और वो जाता ही है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत टाइम को यूटिलाइज कर ही लेता है हर चीज को। ठीक है, तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। अगेन 30 सम निकालना है, 30 3 ऑलरेडी है, तो एक्चुअल में मुझे जो सम चाहिए वो क्या चाहिए 27। ठीक है, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सपोज। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, द सम of A, B and C should be equal to what? 27, right? Now, as I said that we should start with these numbers. ठीक है, अब इन नंबर्स में से let us focus on this. ठीक है, कहां बताया था मैंने, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करना है। मैंने यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया यार, ये बहुत छोटा नंबर है ना, आप देखो 1 2 4 है, तो यहां से देख के समझ में आ जाएगा यार ये तीनों तो नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, फिर देखो कि क्या इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को भी नहीं ले सकते। ठीक है, फिर सेकेंडली आएगा नहीं यार यहाँ तो ऑड था, राइट, तो क्या मैं इन दोनों को ले सकता हूं, इन दोनों को भी नहीं ले सकता। ठीक है,
मैं बोलने के लिए भले मेरे पास टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों में भी नहीं होने वाला, ठीक है। तब आप फिट करोगे सिर्फ 15 को लेता हूँ, तो सिर्फ 15 को लूंगा तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, आई शुड गेट हाउ मच 12। सो 12 होने चाहिए और दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए डेफिनेटली, राइट। सो 13 को लेके तो नहीं बनेगा, 11 को लूंगा तो क्या आएगा 1, सो आई एम गेटिंग 11 1। कैन आई से दिस इज वन केस। ये कोई बहुत डिफिकल्ट है क्या? आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट है कि ये 3 नंबर आइडेंटिफाई करना कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो 15 को ही लेके 11 1 बना। 15 को अगर मैं लूं तो 9 को लेके और कुछ बन सकता है क्या? 9 को लूंगा तो फिर 3 होना पड़ेगा, लेकिन 3 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, 3 हमारे पास है नहीं, तो 9 को लेके नहीं बनेगा। 5 को लेके बनेगा क्या? 5 को लूंगा तो 7 होगा, वो भी नहीं बनेगा अल्टीमेटली, और 1 तो हो गया। इसका मतलब 15 को लेके यही एक केस बनने वाला है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, वो केसेस बनाने जाऊंगा जिसमें 15 को यूज ही ना करूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता हूं, तो नेक्स्ट में इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 24, राइट। So the last number has to be 3, but 3 is already occupied. We can't use 3. So definitely दोनों को साथ में नहीं ले सकते. So can I use 13 alone? If I use 13 alone, then definitely 11 तो नहीं हो सकता. 9 के साथ क्या बनेगा? बन सकता है क्या 9 के साथ? 5 आएगा, राइट? ये भी एक केस हो सकता है। 9 5 के अलावा और कोई केस नहीं बनेगा अगर मैं 13 को लेता हूँ। तो अब 13 भी गया। अब मैं ना तो 15 यूज करूंगा ना 13 यूज करूंगा, अब 11 लेता हूँ। तो 11 लूंगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होगी? 11, 9 और 5. What is the sum we are getting? 25, which is less than 27, right? So can I say यही दो पॉसिबिलिटी केसेस बन रहे हैं, इसके अलावा कोई केसेस नहीं बनेंगे? वो लोग ध्यान दो भाई, ठीक है, जो हिट एंड ट्रायल करते रहते हो। हमारे पास 11 नंबर थे, उनमें से 3 नंबर छाटने थे जिनका सम 27 होना चाहिए था, ठीक है। ये तरीके से आप देखो कि आपने वो केस भी आइडेंटिफाई कर लिया, एंड देयर इज नो डाउट that there will be third case which is possible, which you have not tested, because here you have tested everything. Are you getting it, guys? Please learn this approach. और जैसे मैंने पहले बोला, थोड़ा पेशेंस रखना आपको। ये जो निकाले ऐसा आप भी निकाल, आप बस इस तरीके से स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही निकालोगे आप। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगाना है अपने को, ठीक है। आप खुद सोचो कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक फिट हो जाएगा तो अपना काम बन सकता है। जैसे मैंने बोला था ना, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग केसेस, और खासकर केसेस 2-3 रहेंगे तो ठीक है, उतने मैनेजेबल होने चाहिए, बिकॉज सच सेट्स डिमांड दैट काइंड ऑफ एफर्ट, एंड इनिशियल एफर्ट वुड बी आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफर्ट यू वुड बी पुटिंग, या सबसे ज्यादा एफर्ट उसमें लगने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। चलो इसको लेते हैं, पहले वाले को लेते हैं, या सेकंड वाले को ले लेता हूँ, चलो मैं पहले, ठीक है, कि छोटे नंबर्स हैं, हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैंने तुमको बताया है, अगर आप टिप्स में ध्यान दोगे तो जो बड़ा नंबर होता है जिसमें मैं उसको फोकस करता हूँ, बट फिर भी फॉर दी लर्निंग पर्पस मैं अभी इस वाले को फोकस करता हूँ, ठीक है। सो 5 है इसमें। 5 को लेके देखो यहाँ पे आ रहा ना, इन दिस कॉलम विल नॉट बी 5, तो 5 अगर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, ये सुनो, 5 अगर गया तो यहाँ पर ही जाने वाला है, ठीक। तो उसके बाद बचा क्या, 13 एंड 9, तो या तो यहाँ 13 होगा और यहाँ 9, या फिर वाइस वर्सा। तो एक एक करके देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ और यहाँ पे 13 रखता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। ये 9 अगर मैंने रखा तो इस वाले कॉलम में जो सम है वो 18 की पॉसिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज देखो 9 + 7 इज हाउ मच, 16। अब दो नंबर का सम 18 तो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास है ही नहीं वो दो नंबर, ठीक है। और अगर मैं इसको लेता हूं तो ऑलरेडी 13 एंड 6 दीज टू नंबर इटसेल्फ आर मेकिंग सम मोर देन 18, यस और नो। सो डेफिनेटली माय अजम्पशन दैट वहां पे 9 और 13 आएगा वो गलत था, मुझे क्या लेना चाहिए, 13 एंड 9 लेना चाहिए, यस और नो। अब मैं कौन से केस को फोकस कर रहा हूं, थर्ड, कि डायगोनल वाला फिट होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इसमें भी मुझे 2 और नंबर मिल जाएंगे और ये दोनों फिट होते हैं। इसका मतलब मेरा एजम्पशन कि ये वाला सही है वो पूरा सही होगा, तो आप सोचो 5 नंबर फिट कर जाओगे, और जब 5 फिट हो गए ना उसके बाद तो फिर केक वॉक है, कुछ भी नहीं है उसके बाद, बिकॉज जैसे जैसे नंबर फिट होते जाएंगे ड्रास्टिकली एफर्ट कम होता चला जाएगा, बिकॉज पॉसिबिलिटी कम होती चली जाती है उसमें, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पे तो डेफिनेटली 13 नहीं बनेगा, 13 अगर बनने का चांस है तो इधर है, यहाँ पे देखो कितना है, 9 है और 6 है, तो 9 + 6 इज हाउ मच, 15। सो दीज टू प्लेसेस विल ऑक्युपाई आइदर 1 और 2 लाइक दिस, यस और नो। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप देखो
कोई केस वायलेट हो रहा है क्या, बताइए। सारे केसेस को देखो 1 2 3 4 जो लिखा हो ना ऐसा गोला बना के, मुझे बताओ कौन सा केस इसमें वायलेट हो रहा होगा। यस, C3 कांट बी 1। कौन सा केस, 6 वाला। 6 वाला केस को ध्यान दो, क्या बोल रहा है, किसी एक डायगोनल में देयर कैन नॉट बी मोर देन वन नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इफ आई टेक दिस देन 1 and 9 both are perfect square, getting it? And definitely this diagonal being sum 18 is automatically ruled out because 13 plus 7 is what, 20. So what can I conclude? I can simply conclude that my assumption that the second set would fit in the first row is wrong. तो मुझे मिल गया वो 3 नंबर जो फिट होंगे। Are you all getting it guys? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आप एफर्ट भी देखो, मैं एग्री कर रहा हूं थोड़ा सा है एफर्ट इसमें, लेकिन क्या बहुत इंट्रिकेट लॉजिक लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। हम केसेस को टेस्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। अब आते हैं कि भाई ये 15 जो होगा वो तो यही जाने वाला, ना तो ए की जगह 15 हो सकता ना सी की जगह, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम में कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया इन द प्लेस ऑफ बी। यार ये हटेगा कैसे, इन प्लेस ऑफ बी वी हैव टू फिट 15। तो आपने 15 को फिट कर दिया, यहां से हटा दो और यहाँ पे 1 या 11 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। उसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे 11 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 1 होता है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। In this row definitely the sum cannot be 18, so we have to ensure that this should have the sum 18. So 1 plus 6 is already 7, so we know that the sum of these two places should be 11. yes or no? 1 हो गया, 6 हो गया, and now we know we need 2 more number जिनका sum 11 होना चाहिए। तो क्या क्या possibilities हो सकती है? 11 अगर मुझे करना है, 10 1 तो ले नहीं सकते बिकॉज 1 2 बार हो जाएगा, ठीक है। 9 2 ले सकते हैं क्या, कैन वी टेक 9 2 in the column? नहीं ले सकते, राइट, बिकॉज 1 के साथ 9 फिर नहीं आएगा। कौन सा केस, केस नंबर 6 वाला कंडीशन, राइट, ये भी चला गया। फिर कौन सा होगा, 8 3 ले सकते हैं क्या, नहीं, 3 तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो गया। 7 ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो गया, तो मैं 7 4 भी नहीं ले सकता, 6 5 भी नहीं ले सकता। 6 ऑलरेडी हमने यहाँ पे पुटअप किया हुआ, और तो कोई केसेस ही नहीं बनते इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, 11 यहाँ नहीं आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, सॉरी 1 आएगा, और इट वुड बी स्वैप करना पड़ेगा अपने को 11 और 1 की जगह। I hope you are getting it guys, ठीक है। So we have fit 1 and 11, यही एफर्ट था सबसे ज्यादा, उसके बाद पूरा क्रैक हो गया क्वेश्चन। कोई खास एफर्ट नहीं रहने वाला, अब एकदम नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना मैकेनिकल एक्टिविटी है, वही बच जाएंगे। 1 को भी हटा दिया आपने, 11 को भी हटा दिया उसमें, ठीक है, क्लियर। तो हमने 7 वाला कंडीशन डन हो गया, उसका तो कुछ खास अब करना नहीं है, ठीक है। कंडीशन नंबर जो 6 है अभी भी अपने को रिटेन करना है, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमने पूरा कंप्लीट उसमें काम नहीं किया हुआ है, ठीक। अब क्या करना चाहिए आप लोग बताओ, ये तो पहला काम था, वो हो गया हमारा, वी आर सक्सेसफुली डन दैट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, कौन से कंडीशन को देखना चाहिए अपने को। डायगोनल वाला, ठीक है, डायगोनल वाला देख लेते हैं। डायगोनल वाले से हमारे पास क्या फायदा होगा, डायगोनल वाले से फायदा होगा कि हमें 2 नंबर मिल जाएंगे फिट करने के लिए। थोड़ी देर पहले बात किए थे ना, अगर ये 3 फिट हो जाते हैं तो 2 डायगोनल वाले भी फिट हो जाएंगे, तो हम 5 फिट कर देंगे, और जब 5 फिट हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल वाले को फिट करने के लिए जाते हैं, ठीक है। देखो 11 + 6 इज हाउ मच, 17, तो डेफिनेटली यहाँ पे 18 तो नहीं होगा, तो इसको हटा ही देता हूँ। 18 जो होगा वो यहीं पर होने वाला, तो 1 + 7 is 8। Now the sum of these two places should be what, 10, right? So 1 हो गया, 7 हो गया, and we need 10, ठीक है, आउट ऑफ दीज नंबर्स। इनमें से यूज कर सकते हैं ना, कौन से 2 नंबर का सम 10 आएगा बताओ, कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज 8 and 2, yes or no? There is only one possibility that we should take 8 and 2,
अब 8 यहां पे आएगा कि यहां पर आएगा? कैन वी टेक 8 हियर? यहां पे लिख सकते हैं क्या 8? नहीं, ये वाला लिखा है ना, यहाँ पे 8 नहीं आएगा देखो। सो डेफिनेटली आपने केस भी एक मिला, उसमें भी पता चल गया कि भाई कहां पर आना चाहिए। तो 8 यहां पर आएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, राइट? बस खत्म हो गया, केस कुछ नहीं रहा, ठीक है ना? अब बताओ क्या होगा? अब तो कोई सा भी आप कुछ भी उठा लोगे ना कुछ नंबर फिट हो जाएंगे। थर्ड वाले में देखो, ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, या इसको देखो, जो 10 है, नंबर 10 है, वो यहां नहीं आ सकता, वो यहां नहीं आ सकता, वो यहां पर भी नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे तो ऑड आना चाहिए ना। तो उसके लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही कि इस कॉलम में यहां पर आएगा, यहां पर भी नहीं आ सकता 10, बिकॉज 10 इज एन इवन नंबर। धर्मवीर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? डिस्प्ले नॉट शोइंग वेयर फिलिंग। ठीक है, सो द नंबर 10 विल बी एट दिस प्लेस, राइट? 10 मिल गया वहां पर, तो मैं 10 को भी हटा देता हूं, 8 को भी हटा देता हूं, 2 को भी हटा दिया। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जो बचेगा ना फिर उसी को फिट करना है अपने को, ठीक है? फिर देखो क्या बचा, इवन नंबर में क्या बचा, 4 और 16, ठीक है? और ऑड नंबर में क्या बच रहा है अपने पास, 5 है, 9 है और 13 है, ठीक है? 5, 9 एंड 13, ठीक? ये तीनों के तीनों ऑड नंबर यहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है? अब कौन सा क्लू हमने यूज नहीं किया, इसको देखते जाओ, ठीक है? एक और ये जो क्लू यहाँ पे छूट गया था, ये फिफ्थ वाला क्लूज देखो, क्योंकि 10 मिल गया ना, तो ये वाले क्लूज पे ऑटोमेटिकली हमें जाना चाहिए कि जिस रो में 10 है, देखो 10 होगा तो क्या होगा, 3 + 10 + 2, हाउ मच इज दिस, 15। यहाँ पे जो भी नंबर होगा मैक्सिमम क्या हो सकता है, इट कुड बी 13, ठीक है? अगेन क्या यूज कर रहा हूं मैं, एक्सट्रीम के बाउंड्री कंडीशन, कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 13, अगर यहाँ पे 13 रहता है। So 13 + 15 is how much? What? 28. So can I say this column, the sum would be less than or equal to 28? Yes or no? भाई स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Dharamveer, you close, you leave the this meeting and try to rejoin it. ठीक है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, वो ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर सब जाएंगे उनका सम 28 या उससे नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो अभी कितना हो रहा है, 14 + 1 is what? 15, ठीक है? यहाँ पे जो नंबर आएगा वो या तो 9 होगा या तो 13 होगा, बिकॉज 5 नहीं हो सकता। अगर 9 हुआ तो कितना हो गया, 1 + 14 प्लस सॉरी 1 + 14 प्लस, अगर मैं 13 लेता हूँ, सपोज अगर मैं 13 लेता हूँ, तो डेफिनेटली ये 28 ऑलरेडी हो गया ना, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नंबर आने वाले हैं, बिकॉज इवन नंबर 2 बच गया ना यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे या तो 4 होगा, तो यहाँ पे 16 होगा, या फिर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 16 होगा। तो डेफिनेटली मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं 13 तो नहीं ले सकता, ये बात क्लियर है गाइस? इस प्लेस पे 13 नहीं आएगा, बिकॉज अगर 13 लेता हूं तो फर्स्ट कॉलम का सम इट विल बी मोर देन 28, ठीक है? और 5 भी नहीं आ सकता। सो डेफिनेटली कैन आई से दैट द ओनली नंबर विच आई कैन पुट इट हियर इज 9, ठीक है ना? यहाँ पे मैं कोई अगर नंबर पुट कर सकता हूं एंड दैट इज 9, ठीक है? राइट, ठीक। अब आता है कि सर यहाँ 5 क्यों नहीं टेस्ट किए, क्योंकि अगर हम 5 टेस्ट करते तो क्या मिलता मुझे, 20 मिलता, ठीक है ना? और यहाँ पे अगर मैं 9 कम से कम छोटा 9 रखता तो ये भी बेसिकली 20 से बाहर हो जाता, इसलिए वहां पे 5 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे 9 होगा, डेफिनेटली यहाँ पे 13 होगा, और यहाँ पे आपका 5 आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक? एंड जस्ट टू मेक दिस सम लेस देन 28 आई हैव टू टेक 4, आई कांट टेक 16, सो बाय डिफॉल्ट 16 विल बी। आर यू गेटिंग इट गाइस? ठीक है, उसके बाद उसके जो भी नॉर्मल जो भी क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज वंस यू हैव डन एवरीथिंग तो फिर क्वेश्चन तो कुछ भी होगा उसका आप हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? मैं क्वेश्चन लेके हम लोग टाइम नहीं खराब करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, कौन सा सीट कहाँ पर है, कॉलम का सम क्या होगा, वगैरह वगैरह।
और ये केस ऑलरेडी आई हैव टेकन इट इन दी कोर्स, तो आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल रीजनिंग। 5 और 13 कैसे आया, चलो इसको देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। हम यहाँ थे, हम पहले ना यहाँ पे थे, इनफैक्ट ये भी नहीं था, ये 28 भी। तो हमने क्या देखा, वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, जस्ट अ सेकंड गाइस। So we are using this property number 5, which says that the sum of the column which contains 10 should be more than should not be less than the sum of the column which contains 1. ठीक है, यहाँ पे देखो 3 plus 10 plus 2 is what, 15, right? What numbers we can get here? We can't get 9. 9 देखो यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ की पॉसिबिलिटी क्या है, either it would be 13 or 5, ठीक है। तो दो ही केसेस बनेंगे। अगर 13 हुआ then the sum would be what, 28, और अगर 5 हुआ तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 20, ये सुनो, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, 1 plus 14 है, यहाँ पे तो 5 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे या तो 9 होगा और या 13 होगा। अगर 9 नहीं हुआ तो 1 plus 14 plus 9 plus something here, and here it can be either 4 or 16, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो कम से कम इसका सम निकालोगे तो कितना होगा, 1 plus 14 plus 4 plus 9, यही पॉसिबिलिटी है सबसे कम निकालने की, ठीक है। तो 1 plus 14 plus 4 plus 9 निकालोगे तो डेफिनेटली ये 5 वाला तो एनीवे बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 13 आएगा, ठीक है। So we can figure out this place will be 13, and since 5 cannot come here, so it will be 9, and here it would be 5. And just to ensure that the sum should be more than should be less than this, instead of 16 it should be, or out of 4 and 16 it should be 4 here, और यहाँ पे जो आएगा वो 16। यार देखो, जो इजी वाला सुडोकू होता है ना, वो मान के चलो कि 7 मिनट्स एट मैक्स, 10 मिनट्स मान लो अगर स्टार्ट कर रहे हो तो, हालांकि बहुत जल्दी बन जाता है, 3-4 मिनट्स में बन जाते हैं अगर थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस हो गई है तो। उसके लिए देखो आपको बहुत दिमाग की जरूरत नहीं चाहिए ना, उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए उसमें। एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, लेट मी इसको सर एलआरडीआई में नोट्स कैसे बनाएं? यार देखो, ये बड़ा डिफिकल्ट रहेगा नोट्स कोई स्पेसिफिक, लेकिन हाँ आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है ना उसको जरूर नोट करते जाओ, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने अभी का मान लो कि आपको एक प्रैक्टिस देखूं कि ठीक है भाई कि आज जो हमने किया उसका क्या ऑब्जर्वेशन है, उसको अगर मैं एक लिस्ट करना चाहता हूँ तो ठीक है। चलो आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसको एक बार डील करते हैं, ठीक है।